So, good afternoon, one and all present. Today, BVP CSI presents a webinar on Introduction to Git and GitHub. I must say, these two texts are the most important texts which a fresher should know of any engineering college, not only in the coming 4 years, but throughout your life. While working in any MNC, or I can say any company, either a startup or a product based company, you will be working with these texts. Or I can say, while applying for any internship, the company expects from the candidate that he or she should have a good grasp over these texts. These all are the motivations behind this webinar. Irrespective of your branch, irrespective whether you choose a technical field or a non-technical field, you will be using these texts for sure throughout your life. So this session will be basically divided into two parts. First part is theoretical, in which we will be discussing some terms about these texts. It is important to know some texts. I know theory is basically very boring. This part will be very short and concise, and I will try my best to make it as interesting as I can. And I must say, keep your notebook and a pen with you, make some notes, and do hands on with us in the next session of hands on, and uh, you will be know enough information about git these texts which you need to start this. And many of you also know about open source, contributing to open source. You must hear these words. And to contribute to open source, or you can contribute to open source, you should also know these texts. So we should start. First and foremost term is version control system. So let me give you an example. Suppose you on any day you decides to make an project of anything. Let's say you make an app, an Android app or a web app. Okay, you add some features to it, make it a version 1, and after some time you decides you should add some more features, like मतलब तुम्हें तुम्हें लगा कि अब इसमें थोड़े और फीचर्स मैं ऐड करता हूँ ताकि ये और इंटरेक्टिव बने और अच्छा बने. And when you add those features, your app crashes. You have to undo all your changes and you have to go back to your early version. And if you do it manually, or if you undo all your changes, it will be very time taking and very hectic for you, for any developer. The here version control system comes into the scene. This is the first statement which version control system solves, and there are many problems it solves. Like suppose you are working at any company, any MNC, product based company, service based company, any startup, and where you have to work with group of developers. Every developer will be working on different features, or two or three developers will be working on a same feature. You have to collaborate with them, you have to share codes, you have to it is possible that two or more developers are working on a same code. You have to communicate with other developers through codes. So this is another problem statement which version control system solves. And many other. Git is a preferred version control system of most developers. Git is used by majority of companies across the globe. That's basically Git is an open source version control system that was started by Linus Torvalds, the same person who created Linux. Git is similar to other version control systems, Subversion, CVS, and this is basically Git. And in the we will be also discussing about hands-on on Git commands which you should use to work with Git. Then next term comes GitHub. You many of you know or hear this term. This is basically a open source cloud platform in which you can deploy your Git repositories. Suppose, let me give an example. Suppose you in a group decide to make a project. Okay, one of the students decides to make a decides to make a front end, and another one decides to make a back end. You have to share codes. One of the things is that you can zip your code and share, and then you again that again the second person will update the code and then share with you through Gmail or WhatsApp or any other. And here GitHub comes into the picture. Here you can uh, here you can store your codes
one or more developers can work on a same code, merge their codes, make branches out of codes. uh, I'm sure that many of our you are not aware of these terms, and we will be discussing all these terms in this coming slides. And the next comes is social networking. Social networking aspects of GitHub is probably its most powerful feature that I have discussed earlier also, that you can collaborate with many developers across the globe, many coders, and not only tech fields, in non-tech fields. If you are trying to make any project of a non-tech, you can also share files on GitHub. Suppose you are a developer or you are making any project, and you coded it or you made that project, and by some technical fault your system crashes, you don't have a backup of that, and GitHub also solve this problem. You can make your backup of your codes and all the text files and all of that. Now Shivansh will further explain you about how to install Git and GitHub. हाय एवरीवन, आई एम निर्भय। सो एक बार इंस्टॉल करने से पहले हम अकाउंट क्रिएट करना सीख लेते हैं गिटहब का। आई गेस तुम सब पीसीज पे होंगे, और नहीं हो तो एक बार अपना पीसी खोल लो ताकि तुम्हें साथ साथ पता चल जाए अकाउंट कैसे बनाना है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ विजिबल है। ओके, सो दिस इज github.com, जहाँ पे हम अपना गिटहब का अकाउंट बनाते हैं। सो विल गो टू साइन अप, और यहाँ पे आई एम यूजिंग अ टेम्परेरी ईमेल टू क्रिएट एन अकाउंट। मेरे पास अपना अकाउंट है, तो तुम लोग अपनी आईडी से ही अपना अकाउंट बनाना। तो सिंपल है, यहाँ पे कोई भी तुम अपना यूजर नेम डाल सकते हो, अपना नेम डाल सकते हो। पासवर्ड आई होप सबको समझ आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो बीच में भी चैट पे डाल सकते हो। बस इतना ही था, बस अभी हम क्रिएट अकाउंट कर देंगे। एंड गिटहब अकाउंट इज क्रिएटेड। ये सब ऑप्शनल है, तुम चाहो तो ये सब देख सकते हो, अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि आर स्टूडेंट एंड समथिंग। कंप्लीट सेटअप। एक वेरिफिकेशन का ईमेल आएगा तुम्हारे इनबॉक्स पर। वेरीफाई, एंड दैट्स इट, तुम्हारा गिटहब का अकाउंट क्रिएट हो गया है। जिसका अकाउंट क्रिएट हो जाए एक बार डन लिख देना चैट बॉक्स पे, ताकि हमें ही पता चल जाए कितने लोगों का अकाउंट क्रिएट हो गया है एक्चुअली में, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। Okay. किसी कोई डाउट हो तो वो भी लिख सकता है चैट बॉक्स पर। ओके ग्रेट, आई गेस मैक्सिमम लोगों का हो गया है, एंड इसमें कोई ज़्यादा डाउट आएगा नहीं। तो अब शिवांश तुम्हें गिट इंस्टॉल करना सिखा देगा, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा हुआ है। शिवांश। So hello all, I'm myself Shimash Trivedi. I'm CSE morning third year. तो चलो यार अब एक बार गिट इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ विजिबल है। एक बार स्टेप बाय स्टेप चलना है इसमें, क्योंकि गिट इंस्टॉल करना थोड़ा सा इसमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं जरा ऑप्शंस तुमको। इससे पहले VS कोड भी कराना पड़ेगा ना? पहले ये वो, उसके बाद VS कोड कराऊंगा। इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा VS कोड को। ठीक है। एक बार सारे गिट खोल लो, मैंने कल भेज दिया था सबको, आई होप सबने डाउनलोड कर लिया हो।
एक बार सब खोल लो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ये वाली स्लाइड पे भी नेक्स्ट। अब देखो यार, मेन स्टेप ये है, जो थर्ड स्लाइड आएगी ना तुम्हारी, यहाँ पे सबको यूज करना है, यहाँ सब पे सब सिलेक्ट करना है, यूज विजुअल स्टूडियो कोड एज गिट्स डिफॉल्ट एडिटर। इसमें कोई और सिलेक्ट मत करना, ये वाली मेन चीज होती है। ये वाली मेन चीज के लिए मैंने रोका था कि तुम अपने आप से इंस्टॉल मत करना, वरना ये सेलेक्ट सब पे नहीं आता है, किसी किसी पे नैनोरेटर आएगा, किसी पे कुछ आएगा। सब विजुअल स्टूडियो कोड को सिलेक्ट करना, देन गो फॉर नेक्स्ट। इसमें रिकमेंडेड वाला जो है सेकंड पार्ट, वही वाला करना, नेक्स्ट। इसमें किसी किसी का नेटिव विंडो सिक्योर चैनल आता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ग्राफिक कार्ड पे भी। तो सब ओपन एसएसएल लाइब्रेरी कर लेना, इस पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना इस पे। देन इस पे भी फर्स्ट ऑप्शन चेकआउट विंडो स्टाइल, कमेंट यूनिक स्टाइल लाइन एंडिंग्स, इस पे भी यूज मिन टीटीवाई कर लेना। इस पे तीनों किसी किसी के चेक आएंगे, खाली 2 चेक करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाला चेक मत करना। एंड देन फाइनली इंस्टॉल दबा देना। मैं इंस्टॉल नहीं दबा रहा, मेरे पे इंस्टॉल्ड है, ये वाले को अनचेक कर देना। तो सब इंस्टॉल दबा देना और ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार जिसने इंस्टॉल कर लिया वो अपने चैट बॉक्स पे लिख देना डन। कोई कमेंट है तो भैया नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, कौन से स्टेप में ब्रो? VS कोड सेलेक्ट करके उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, कह रहा है। तो एक काम कर, पहले फिर VS कोड ही डाल लो, किसी किसी में दिक्कत आ रही होगी। एक काम कर लो सारे, एक बार पहले VS कोड डाउनलोड कर लो, VS कोड वो कर लो, VS कोड अपने लैपटॉप में डाल लो। उसके बाद ये सिलेक्ट कर लो ऑप्शन, और बाकी जैसे स्टेप बताए हैं सारे आगे कर लेना, ठीक है। एक बार VS कोड डाल लो सारे, मैंने उसका भी लिंक भेज दिया था, चैट बॉक्स में भी है। डाउनलोड होकर नॉर्मल हो जाएगा इंस्टॉल। उसके बाद VS कोड सिलेक्ट करके सारे बस नेक्स्ट 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 करना, कुछ ज़्यादा नहीं करना उसमें। एक बार हो जाए तो बताओ। किसी किसी में दिक्कत आती है ये, बाकी में नहीं आ रही होगी। श्योर। किसी के स्टेप्स में प्रॉब्लम है तो फिर देख लो एक बार। थर्ड वाली स्लाइड पे तुम्हें VS कोड को गिट का डिफॉल्ट ब्राउजर सेलेक्ट करना, ये मेन स्टेप है। ये नहीं करोगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी VS कोड यूज करने में, तुम्हारे वो गिटहब से कनेक्ट ही नहीं होगा। फिर बस यहाँ से सेकंड, फिर तो नॉर्मल 90% लोगों का जो आ रहा होगा बस उसी को सिलेक्ट करते जाना, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, 1-2 में आती है बस। और एक बस ये वाले में ओपन SSL लाइब्रेरी खाली सिलेक्ट करनी है, नीचे वाला नहीं करना। बाकी नेक्स्ट 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 करते जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन स्टेप यही था बस इसका। जिसका हो जाए यार एक बार बता भी देना, वी आर वेटिंग। आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। हो गया, बाकी लोग भी करते जाओ। एक जिसका गिटहब डेस्कटॉप, एक जिसका ये हो गया, गिटहब पे अकाउंट भी बन गया और ये भी इंस्टॉल कर लिया, वो गिटहब डेस्कटॉप पे लॉगिन कर लेना अपने अकाउंट से, जो भी निर्भय ने बनवाया होगा उसी से गिटहब डेस्कटॉप पे लॉगिन कर लेना।
ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, बस वो लॉगिन हो जाएगा। वो क्रिएट करेगा, बस अभी लॉगिन करके छोड़ दे, उसकी और कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस रिपोजिटरी अभी वगैरह हम सब देखेंगे। अभी सब करवाएगा निर्भय अभी। और किसी का डन, बहुत बढ़िया। और बताओ बाकी लोग भी। चलो हो गया सबका आई गेस। अगर किसी को भी दिक्कत है तो चैट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। निर्भय आगे करा दे। हाँ ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट अ रेपोजिटरी यार क्या होती है कि तुम ये मान सकते हो गिटहब पे तुम्हारी अगर कोई डायरेक्टरी बनी हुई है ना, जैसे किसी प्रोजेक्ट की, तो उससे हम गिटहब पे रेपोजिटरी कहते हैं। रेपोजिटरी बस ये चीज होती है, हर रेपोजिटरी का एक अपना यूनिक यूआरएल होता है। यू कैन शेयर विद एनीवन एंड वो तुम्हारे साथ कोलैब कर सकता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकता है, उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है एंड अपने गिटहब पे भी पुश कर सकता है। तो अब हम रेपोजिटरी देख लेते हैं कैसे दिखती है। So I've created several repositories like, तो एक रिपोजिटरी देखो ऐसे दिखती है। ये मैंने एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम का बना रखा है, मैंने अपनी रिपोजिटरी बना रखी है ये फोल्डर्स एंड फाइल्स की तरह। जैसे तुम्हारा बिल्कुल एक सिस्टम पे होता है, फोल्डर होता है, उसके अंदर तुम्हारी फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, बिल्कुल सेम वही होता है। अब एक तो ये है, एक अब रेपोजिटरी में क्या है, तुम या तो अपनी रिपोजिटरी खुद बना सकते हो या तुम किसी की रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हो, उसकी रिपोजिटरी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये साइड में मेरे पास किसी की रिपोजिटरी आ रही है सपोज, तो अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे सिस्टम पे आ जाए ये रिपोजिटरी और मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। अब तो व्हाट आई विल डू, मैं इसका लिंक कॉपी करूंगा। तुमने गिट इंस्टॉल किया होगा, यू टाइप गिट, ये गिट बैश आ जाएगा। ओपन द गिट बैश। मैं डेस्कटॉप पर आ रहा हूँ बस। सिंपल कमांड है गिट क्लोन। एंड बस लिंक पेस्ट कर दो। नॉट सपोर्टेड, ओके। बंदे ने अपनी ये रिपोजिटरी पब्लिक नहीं कर रखी है, कोई नहीं, मैं तुम्हें अपनी रिपोजिटरी क्लोन करके दिखा देता हूँ। क्लोन। अब ये मेरी रिपोजिटरी मेरे डेस्कटॉप पे क्लोन हो चुकी है। यू कैन सी हियर, ये फोल्डर बन गया है। अब मैं इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ, मेरे को जो चेंज करना है। एंड अगर मेरे को कुछ लगता है तो मैं बंदे को पुल भी कर सकता हूँ, वो हम बाद में देखेंगे। बट अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मेरी लोकल हो गई है अब, इट्स अवेलेबल टू मी। तो ये तो होता है हमारी क्लोनिंग, कि हमने किसी और की रेपोजिटरी को अपने पास ले लिया। अब मेरे को अपनी रेपोजिटरी बनानी है, मेरे को अपना प्रोजेक्ट मैंने सिस्टम में बना रखा है, अब मेरे को उसको डालना है गिटहब पे। तो यहाँ पे न्यू आ रहा है, आई विल गो टू न्यू। यहाँ पे रेपोजिटरी का अपना नेम दे दो, तुम कुछ भी नेम दे सकते हो। मैं नेम दे रहा हूँ डेमो। मैं डेमो रिपोजिटरी बना रहा हूँ, बाकी सब कुछ एज इट इज। ये पब्लिक प्राइवेट ये है कि अगर क्या कहते हैं, मेरे को अपनी रिपोजिटरी ओपन करनी है इंटरनेट के ऊपर कि कोई भी सर्च कर सके, डाउनलोड कर सके, तो मैं इसे पब्लिक रखूंगा। और मेरे को अपने तक रखना है तो मैं इसे प्राइवेट कर दूंगा। बाकी ये सबको तुम इग्नोर कर सकते हो, जस्ट क्रिएट अ रिपोजिटरी। तो अभी तुम्हारी एक डेमो रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है।
अब हम इसमें अपना डेटा पुश करेंगे। अभी तुम देख सकते हो इसमें कुछ भी कोई फाइल नहीं आ रही है, कुछ नहीं है। नाउ वी विल पुश। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डेमो का। क्रिएटेड अ फोल्डर डेमो। हम VS कोड चला लेते हैं। तो अभी इसमें कोई फाइल नहीं है। वी क्रिएट अ फाइल test.txt। ये हमारी एक टेस्ट फाइल क्रिएट हो गई है। तुम टर्मिनल यहाँ से खोल सकते हो, न्यू टर्मिनल से, और ये शॉर्टकट की भी होती है उसकी। ठीक है, अब हम इसमें लिख देते हैं फॉर सपोज कुछ भी लिख देते हैं ABC एंड जस्ट सेव द फाइल। अब सबसे पहले तो इसमें डायरेक्ट पुश नहीं होगा, पहले हमें कमांड लिखनी पड़ेगी गेट इनिट। गेट इनिट से क्या होगा, ये हमारी अब एक एम्प्टी रिपॉजिटरी इसमें इनिशियलाइज हो गई है। अगर हम गेट इनिट नहीं लिखेंगे ना, तो ये जो बाय डिफॉल्ट गिट जो होता है इसके रूट पे सेट होता है सिस्टम के, तो ये उसी को पॉइंट करता रहेगा, तुम्हारी इस डायरेक्टरी के ऊपर नहीं आएगा। तो गेट इनिट लिखना कंपलसरी है इसलिए। ठीक है, अब हम गेट स्टेटस यार तुम्हारी ये कमांड बताती है कि कौन कौन सी फाइल अनस्टेज्ड है। अनस्टेज्ड का मतलब है कि तुम्हारी फाइल ये मॉडिफाइड है, बट तुमने अभी तक इसको स्टेजिंग में नहीं लाए हो, इसको अभी तुम पुश नहीं कर सकते। अगर मैं सीधा गिट पुश कर दूंगा तो ये मेरी पुश नहीं करेगी, मेरे को पहले इस फाइल को ऐड करना पड़ेगा अपने गिट के अंदर। तो आई विल सिंपली राइट गिट एंड द नेम ऑफ द फाइल। अब ये मेरी स्टेज हो गई है फाइल, ये देखो अब तुम देख सकते हो ये ग्रीन हो गई है। अब ये मेरी स्टेज्ड है, अब ये मेरी पुश होने के लिए रेडी है। अब गेट कमिट डैश एम। गेट कमिट डैश एम से क्या होता है कि मान लो तुम कुछ काम कर रहे हो एंड फॉर सपोज तुमने यार काम बीच में छोड़ दिया। अब तुम्हें लग रहा है यार यू वांट टू कंटिन्यू इट लेटर, तो तुम यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो कि मैंने इतना काम कर दिया, या फॉर समथिंग फॉर सम रीजन यू कैन राइट द रीजन कि तुम इसको कब पुश कर रहे हो। मैं इसको फर्स्ट टाइम पुश कर रहा हूँ तो मैं इनिशियल लिख रहा हूँ, यू कैन राइट एनीथिंग इन द कोड्स। अब ये मेरा मैसेज भी चला गया। ठीक है, अब इसका हमें ओरिजिन सेट करना होगा। अब हमें कहाँ पे पुश करना है इस CLI को, मेरे कमांड लाइन को कैसे पता चलेगा यार मेरे को कहाँ पे पुश करना है। अब मेरे को इसका ओरिजिन डालना पड़ेगा। ओरिजिन का मतलब है कि वो लिंक जिसके ऊपर तुम्हें इसको पुश करना है। ये कमांड होती है जिससे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा ओरिजिन कहाँ पे सेट है। अभी मेरा ओरिजिन कहीं पे भी सेट नहीं है। अब इधर देखो, ये है गेट रिमोट एड ओरिजिन, ये मेरा सेम लिंक है ये वाला। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट ओवर देयर। अब मेरा ओरिजिन ऐड हो गया है, मेरे गिट को पता है कहाँ पे पुश करना है। आई राइट गेट पुश एंड अब ये तुम्हें अपस्ट्रीम सेट करने के लिए बोलेगा। अपस्ट्रीम भी क्या हेलो, होता है? या ये कौन सी वेबसाइट है? एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। दिस इज github.com। तो गिटहब पे हम कोडिंग भी करते हैं? नहीं, गिटहब पे हम कोडिंग नहीं करते। गिटहब पे जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, जो कुछ भी करा है, उसको हम उस पर डाल सकते हैं। तो जैसे हमने कोई सा भी मतलब एकदम बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाया है, मतलब बेसिक भी कोडिंग करी है, तो हम उस पे वो भी डाल सकते हैं? कुछ भी डाल सकते हो, यू कैन एनीथिंग, मतलब कुछ मतलब भी डाल हमें सकते बस एक वो एज एक स्टोर कर रहे हैं हम वहाँ पे कि हमने हो। हाँ, ये राइट किया है। राइट। और ये जो रिपोजिटरीज है उसका क्या है ये? रिपोजिटरी क्या होती है? रिपोजिटरी एक तुम्हारी एक डायरेक्टरी है गिटहब के ऊपर। जो गिटहब के ऊपर डायरेक्टरी है ना, उसको तुम रिपोजिटरी बोलते हो इन अच्छा, सिंपल वर्ड्स। तो या मतलब जैसे हमने अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए, तो उसमें हम उनको जो सेम टाइप के हैं वो एक रिपोजिटरी में डालेंगे। इट्स योर चॉइस, तुम्हें एक रिपोजिटरी में डालना है, अलग में डालना है, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग बनानी है, सेम बनानी है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, तुम क्या नहीं, डालना जैसे चाहते हो। अगर हमें ताकि कंफ्यूजन ना हो तो हम अलग अलग में डाल सकते हैं या ना? या 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 रिपोजिटरी ये बनाते कैसे हैं? ओके, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ एक बारी। मेरा टेस्ट था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। यू हैव क्रिएटेड अकाउंट ऑन गिटहब? हाँ हाँ। ओके, तुम इसमें स्क्रीन विजिबल, ये वाली स्क्रीन तुम्हारे डेस्कटॉप पे आ रही होगी, राइट? हाँ यहाँ पे जी। न्यू हम्म। repository name, you can write any name for the repository, ओके ओके whatever you like, and just create repository. That's it. ओके ओके ओके। Yeah. थैंक यू फॉर टेलिंग मी अगेन।
हाँ, तो अब हम पुश करने का देख रहे थे ना, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं ओरिजिन सेट कर दिया था, अब हमें अपस्ट्रीम भी सेट करनी है। यार अपस्ट्रीम भी यही होता है तुम्हारा बेसिकली, जहाँ से तुम्हारा फैच होता है डेटा एंड पुश होता है। तो तुम इसको इतना ज़्यादा में देखो इग्नोर कर सकते हो, बट इसको सेट कर दो। सी ये तुम्हारा पुश कर रहा है। अब मेरी टेस्ट फाइल मेरी इस पे अपलोड हो गई होगी। अब रिफ्रेश, यू कैन सी अभी यहाँ आप पे ये बता रहे हो कि ये अपलोड कैसे करनी है उसमें? या एक बार और बता दोगे प्लीज? कि सी मैं यहाँ पे कमांड से बता देता हूँ। हमने पहले एक फोल्डर बना लिया अपने लोकल डेस्कटॉप पे। हाँ जी। उसके बाद हम उस फोल्डर के अंदर क्या कहते हैं, जस्ट फोल्डर के अंदर हमने गिट इनिट करते हैं। गिट इनिट से क्या होता है, जो हमारा गिट का पॉइंटर होता है ये इस फोल्डर के अंदर आ जाता है। अगर मैं गिट इनिट नहीं करूंगा इस फोल्डर के अंदर, तो ये मेरी रूट के अंदर ही रहता है गिट इनिट। मेरे इसको नहीं पता चलेगा कि इसमें फाइल्स कौन सी हैं, ये गिट के ऊपर नहीं जाएगा। ये मैंडेटरी स्टेप है करना। ओके। फ्रॉम दिस गिट स्टेटस हम यहाँ से ये चेक करते हैं मैंने जो फाइल बनाई कि अनस्टेज फाइल तो नहीं है। अनस्टेज का मतलब है कि अभी ये पुश होने के लिए रेडी नहीं है, ये रेड में आ रही है, इसका मतलब अभी मैं इसको पुश नहीं कर सकता। अगर मैं डायरेक्ट पुश लिखूंगा तो इट वोंट, क्योंकि अभी इसको नहीं पता कि इस फाइल को हमें पुश करना है। वी हैव टू राइट गिट एड एंड द नेम ऑफ द फाइल। अब अगर हम गिट स्टेटस इसके बाद देखेंगे तो ये ग्रीन में आ रहा है हमारा, इसका मतलब है इट इज अ स्टेज फाइल, इट्स रेडी टू पुश। इसके बाद गिट कमिट डैश एम। गिट कमिट डैश एम क्या होता है, ये सिर्फ हमारा एक मैसेज के लिए होता है कि हम क्या पुश कर रहे हैं या कहाँ तक का पुश कर रहे हैं, कि हम किस रीजन से पुश कर रहे हैं। हमने पहली बार पुश किया है तो मैंने लिख दिया इनिशियल। यू कैन राइट एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट अपने अकॉर्डिंग्स के हिसाब से, कि तुम्हें जैसे बाद में समझ आ जाए कि तुमने क्या पुश किया था इसके अंदर। उसके बाद गिट रिमोट डैश वी। ये रिमोट क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब ये जो इस गिट को कैसे पता चलेगा कि मेरे को इस पे पुश करना है, इसको मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को इस पे पुश करना है। तो अभी इसको नहीं पता, तो इससे बस चेक होता है कि कोई ओरिजिन है। मैंने डाला कुछ नहीं आया क्योंकि मेरे पास कोई ओरिजिन नहीं था। ये कमांड है गिट रिमोट एड ओरिजिन एंड द लिंक जिसपे तुम्हें पुश करना है। ये लिंक तुम्हारा अपना होना चाहिए, ये नहीं है कि तुम किसी और का ओरिजिन ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसका एक्सेस तुम्हारे पास नहीं होगा। अब मैंने गिट रिमोट डैश वी किया तो मेरा ये ओरिजिन इसने बता दिया कि ये यहाँ पुश होगा। गिट पुश के बाद यहाँ पे हमें अपस्ट्रीम सेट करना पड़ता है। जैसे ओरिजिन सेट हुआ था ऐसे ही क्या अपस्ट्रीम सेट होता है। हमने अपस्ट्रीम सेट किया एंड उसके बाद सिंपली इसने हमारा पुश कर दिया, बस यही है गिट पुश। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा अभी तक। किसी को नहीं आया तो चैट बॉक्स में डाउट लिख देना। तो हमारा गिट पुश तो हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब मैं मान लो इसमें कोई फाइल चेंज कर, मान लो मैं इसमें फाइल में चेंज करा है मैंने। अब ABC के नीचे मैंने 1 2 3 लिख दिया, मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब देखो मैं गेट स्टेटस चेक करता हूँ एक बार। फिर से मेरा ये बता रहा है कि अभी ये चेंज्ड फाइल है मेरी। फिर से मॉडिफाइड लिखा है ना इसके आगे, इसका मतलब मैंने फाइल में चेंज करा है। मेरे को इसको पुश करना है या नहीं करना है। अब मेरे को इसको पुश करना है। अब देखो मैं गिट ऐड लिख रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, अभी तो मेरे पास एक फाइल है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 100 फाइलें होती तो मैं एक एक करके टेस्ट डॉट टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 ऐसे एक एक नहीं लिखता, इतना टाइम नहीं लगाता। आई विल सिंपली ऐड अ डॉट, गिट ऐड डॉट। डॉट से क्या होता है, तुम्हारी जितनी फाइल्स है डायरेक्टरी के अंदर वो सारी तुम्हारी स्टेज्ड हो जाएंगी एक ही बारी में। चेक गिट स्टेटस, पेज हो चुकी है मेरी फाइल। इस बार मेरे को अपस्ट्रीम नहीं सेट करनी पड़ेगी, मैं सिंपल गिट पुश कर सकता हूँ। वेट, मैंने गिट कमिट नहीं करा। गिट कमिट डैश एम सेकेंड 1 फाइल चेंज गिट पुश। तो मेरी फाइल अब दोबारा पुश हो चुकी है। इफ आई रिफ्रेश, तुम देख सकते हो 16 सेकेंड्स अगो सेकेंड मेरा मैसेज आ रहा है एंड ये मेरी फाइल अब यहाँ पे मॉडिफाइड है। तो ये चीज हो गई। एक तो पुश करने का यही था मेन चीज। अब हम एक, यार इसमें एक ये भी बनती है डॉट गिट इग्नोर की फाइल होती है।
तुम मान लो इसमें ना तुम्हारे पास कोई फोल्डर हो, जैसे हम वेबसाइट का जब करते हैं ना, तो क्या होता है उसमें हमारे पास जैसे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है, या तुम्हारे पास कोई भी फोल्डर है, हैवी फोल्डर है, अब तुम्हें यार वो नहीं पुश करना। अब या तो एक तरीका ये है कि तुम एक एक करके फाइल्स लिखो कि मेरे को ये पुश करनी है, या फिर मैं git add डॉट करूंगा तो सारी फाइल्स पुश हो जाएंगी। अब मेरे को तो पुश नहीं करनी सारी फाइल, तो मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा उस फाइल का कि मेरे को यार अब ये वाली फाइल पुश नहीं करनी है, मैं लिख देता हूँ test.txt। अब अगर मैं चेक करूंगा ना तो मेरे गिट स्टेटस में ना ये नहीं दिखाएगा, ये डॉट गिट इग्नोर को दिखाएगा। गिट इग्नोर तो मेरा पुश होगा, लेकिन अब ये फाइल मेरी पुश नहीं होगी, अब ये इसको हमेशा इग्नोर करेगा। तो गिट इग्नोर का बस ये काम है। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया पुश का काम। अब हम एक ब्रांचिंग और देख लेते हैं। इसमें गिट में ब्रांचिंग क्या होती है? एक तो होती है हमारी मास्टर ब्रांच जिसमें हमारा सारा मेन काम हो रहा है, जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो मेरा सारा मास्टर ब्रांच में चल रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें इसको ढंग से बताता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारी मेन ब्रांच होती है, अब मैं मेन पे मैं अपना यार प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कर दिया गिट कमिट, तो मैं अपना बढ़िया काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मेरी वेबसाइट चल रही है, हमारी वेबसाइट चल रही है BVP CSI की। तो अब मान लो हमारे को बोल दिया यार इसमें ना एक ऑथेंटिकेशन डालो, बंदे ना रजिस्टर कर सके, यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना दो। तो अब यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम मैं एक दिन में तो बना नहीं सकता, या एक बारी में तो मैं बना नहीं सकता, मेरे को टाइम चाहिए बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं अब इस मेन ब्रांच के ऊपर ही अपना यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बिल्ड करने लग जाऊं, तो दिक्कत होगी कि अब कोई साइट चलाएगा, उसको साइड में अनकम्प्लीट वो चीज दिखेगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा और वो ठीक भी नहीं है दिखना। तो मैं क्या करूंगा, एक ब्रांच बना दूंगा अलग से, टेस्ट ब्रांच। इसकी कमांड होती है git checkout -b एंड द नेम ऑफ द ब्रांच। अब ये मेरी टेस्ट ब्रांच बन गई। अब मेरे पास मेन ब्रांच है, टेस्ट ब्रांच है, मैं 1000 ब्रांच भी बना सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम कितनी भी ब्रांचेस बना सकते हो। बट ये इसकी कमांड है बस, git checkout -b। अब मैं क्या करूंगा, इस पे अपना काम करता रहूंगा। गिट कमिट मैंने कर दिया, इस पे मैंने और काम कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि जब मैं टेस्ट पे काम कर रहा हूँ, मान लो मेरे को साइट पे किसी ने बोल दिया भाई थोड़ा सा ना हेडर चेंज कर दे, एक हेडर डाला हुआ है बस वो चेंज कर दे। अब ऐसा नहीं है कि मैं पहले इसी पे चेंज करके इसको पूरा डाल के करूँ, मैं डायरेक्ट इस पे भी अब काम कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, गिट चेकआउट मेन, मैं इस ब्रांच पे अपनी आ गया, मैंने इस पे चेंजेस कर दिए छोटे मोटे मेरे को करने थे। अब ये देखो मेरा वर्क हो गया सेपरेट। अब ये मेरा मेन चल रहा है, यहाँ मेरी फंक्शनैलिटी मैं अपनी बिल्ड कर रहा हूँ। अब फॉर सपोज मेरी फंक्शनैलिटी अब यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है, अब मेरे को ये वर्क को उठा के वापसी इधर लेके आना है कि भाई टेस्ट का काम पूरा हो गया, इसको मर्ज कर दे। तो आई राइट गिट मर्ज, मैं मेन ब्रांच पे हूँ, तो मैं लिखूंगा गिट मर्ज टेस्ट, ये मेरा टेस्ट के साथ मर्ज कर देगा। अब मेरा टेस्ट का सारा वर्क इधर भी मर्ज हो चुका है। तो ये मेरी ब्रांचिंग है। ऐसे मैं n नंबर ऑफ ब्रांचेस बना सकता हूँ, मैं उन पे कितना भी काम कर सकता हूँ, किसी भी ब्रांच को कहीं पे भी मिक्स कर सकता हूँ। ये होती है हमारी ब्रांचिंग। अब हम ब्रांचिंग को करके देख लेते हैं एक बारी। अब ये देखो यहाँ पे मास्टर लिखा आ रहा है, मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ इस टाइम पे। मैं यहाँ पे ब्रांच बना लेता हूँ गिट चेकआउट -b, टेस्ट ब्रांच मैंने एक बना ली। ठीक है, अब मैं टेस्ट ब्रांच पे यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे ना चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 4 5 6 कर देता हूँ नीचे। ठीक है, तो भाई कर दिया, गिट ऐड, मैंने ऐड कर दिया। मैंने गिट कमिट -m टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट का फर्स्ट कमिट है ये मेरा, एंड आई लाइक गेट पुश। इसकी एक बार अपस्ट्रीम सेट होगी क्योंकि मैंने ब्रांच चेंज करी है। ये मेरी टेस्ट ब्रांच पे पुश हो गया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले सिर्फ मास्टर ब्रांच आई थी, अब मेरी टेस्ट ब्रांच भी आ रही है। टेस्ट ब्रांच में मैं देखता हूँ ये मेरा डेटा है। अब तुम इसकी एक और चीज देखो, अब यहाँ पे ये मेरा ABC 1 2 3 4 5 6 लिखा है, अभी मैं टेस्ट ब्रांच पे हूँ, मैंने फाइल दोबारा खोली, ये लिखा है, मैं फाइल को बंद कर रहा हूँ।
मैं मेन ब्रांच पे वापसी आ रहा हूँ अब। हिट चेकआउट मास्टर, देख रहे हो मेरा डेटा मास्टर पे दूसरा है और टेस्ट पे दूसरा है। मतलब मेरे को अलग अलग वो अपने लोकल पे भी मेरे को दो दो नहीं बना के रखने पड़ेंगे कि यार मेरे को 2 कॉपी बना के रखनी पड़ेगी, टेस्ट के लिए अलग और मास्टर के लिए अलग। मैं एक ही उससे कर सकता हूँ। तो ये हमारी ब्रांचिंग का बेनिफिट है। तो यही है हमारी मेन ब्रांचिंग। ठीक है, अब इसके आगे का हमारा बचा है पुल एंड फोक बचा है। अब वो तुम्हें शिवांश बताएगा उसका डेमो। यहाँ तक का किसी को डाउट हो तो अभी चैट बॉक्स में लिख सकता है, विल आंसर। यहाँ तक हो गया सबका? डन लिख दो यार अगर हो गया तो। यू कैन टेक योर टाइम, और कोई दिक्कत हो तो तुम लिख भी सकते हो चैट पे, कोई दिक्कत नहीं है। ले लो टाइम, जल्दी नहीं है, इंपॉर्टेंट है यार। ये पूरा 4 साल तक ही चलता रहेगा तुम्हारा। आगे इंटर्नशिप्स में अप्लाई करोगे ना, सबसे पहले गिटहब ही पूछेंगे वो। सब वो तुम ये बोलोगे कि तुमने ये प्रोजेक्ट बनाया वो प्रोजेक्ट बनाया, ऐसे कोई नहीं मानेगा। तुम्हारे गिटहब पे डाला हुआ होगा ना, बंदा देखेगा समझ जाएगा हाँ भाई तुमने काम कर रखा है, इसलिए गिटहब इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारे डायरेक्ट गिटहब अकाउंट पे आके देखेगा तुमने क्या काम करा है। अगर तुम्हारे गिटहब खाली है ना तो कुछ नहीं मानेगा तुम्हारा। आगे हैकाथॉन में पार्ट लोगे ना, उसका सिलेक्शन भी गिटहब से ही होता है। हाँ, हैकाथॉन में तो गिटहब अकाउंट मैंडेटरी है, और जब तक गिटहब पे कमिट्स नहीं हो हैकाथॉन में तो तुम जा ही नहीं सकते। भाई वायरस फाइल तेरे को क्यों भेज रही है? मैं बता देता हूँ भाई, गिटहब ना जो भी तुम डालते रहते हो ना उसमें नजर रखता रहता है। अगर मान लो तुमने कोई चीजें भी डाली है, कुछ नोड मॉड्यूल्स डाले हुए, या फिर कोई भी ना पैकेज भी डाला है, अगर उसमें भी कोई दिक्कत होती है ना, या फिर उसका डाटा वर्जन भी ऑब्सलीट होता है ना, तो वो तुम्हारे पास मेल भेज देता है सीधा, और ये धमकी तक आ जाती है कि आपका प्रोजेक्ट भी वो बंद कर सकता है या हटा सकता है गिटहब से। तो गिटहब बहुत सिक्योर है, ऐसा कुछ भी नहीं जाता उसके इवन ऊपर। तुम नॉर्मली EXE फाइल भी कहीं भी अपलोड कर दोगे ना, तो तुम्हें EXE फाइल में भी वो बोलने लग जाएगा कि भाई ये वायरस तो नहीं है। EXE फाइल भी नहीं करने देता कभी कभी। तुम वायरस तो तुम भूल ही जाओ। हो गया सबको? तो आगे चले। आगे की चीज यार थोड़ी देखनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ कि सबको उतना समझ आ जाए। हो गया? चलो यार फिर आगे चलते हैं। एक बार निर्भय वो लिंक भेजते हैं हाँ अपना, मैंने भेज दिया। उसी को पुल कर लूंगा। स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है। चलो, तो ब्रांचेस तक तो हमने पढ़ लिया था। अब अगला काम होता है अपना फोकिंग का, कि फोक होता क्या है। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मान लो तुमको किसी का प्रोजेक्ट गिटहब पे बहुत अच्छा लगा, यू वांट कि तुम उसमें अपने कुछ कंट्रीब्यूशंस दो, कुछ उसमें ऐड करो, वो पब्लिक प्रोजेक्ट है। तो क्या तुम बार बार उसको क्लोन करते रहोगे? मान लो जैसे निर्भय ने अभी कुछ हमें रेपो दिखाई, हमें जैसे रेपो उसके टेस्ट वाली, अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। हमें लगा कि इस रेपो में हम ये वाले चेंजेस कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इससे इस प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी बढ़ जाएगी। तो तुमने एक बार को तो कर लिया जैसे अभी करा, लेकिन मान लो अगर कल को निर्भय ने इसमें कोई और चेंज कर दिया, तो क्या तुम फिर उस प्रोजेक्ट को क्लोन करोगे? ये तो एक छोटी सी फाइल है टेक्स्ट की, इसमें बड़े बड़े 800-900 MB की फाइल आती है, और हर दिन के कमेंट्स होते रहते हैं उसके ऊपर। तो बार बार इसी जगह पे आना, इसके गिटहब लिंक पे आना, फिर वहां से बार बार क्लोन करना, इससे बढ़िया होता है कि तुम एक काम करो, तुम कर लो फोक। फोक क्या होता है कि जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है, जो भी तुम्हारी गिटहब है, तुम किसी और का प्रोजेक्ट अपनी गिटहब पे ले आओ। जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है निर्भय का, निर्भय जैन 20 डेमो। यहाँ पे तुमको सबसे टॉप राइट में देखो एक फोक का बटन दिख रहा होगा। फोक क्या करता है कि एक लोकल कॉपी बना देगा तुम्हारे अपने गिटहब अकाउंट में इस वाले प्रोजेक्ट की। जैसे मैंने फोक दबाया,
अब ये वाला देखो, जैसे शिवांश द्विवेदी, ये मेरी गिटहब है, ये है मेरा गिटहब। अब इसके ऊपर लिखा रहा है शिवांश द्विवेदी डेमो फोक्ड फ्रॉम निर्भय जैन 20। इसका मतलब निर्भय ने जो अपना ओरिजिनल प्रोजेक्ट बनाया है उसको मैंने अपने गिटहब अकाउंट पे चेंजेस करने के लिए फोक कर लिया। ये इसकी एक लोकल कॉपी है। ये मेरा गिटहब अकाउंट है, देखो ये मेरा गिटहब अकाउंट है। अगर मैं इसके रिपोज में जाऊं तो ये देखो डेमो यहाँ पे भी विजिबल होगा तुमको। तो इसको कहते हैं प्रोजेक्ट को फोक करना, कि उसका जिसका भी मेन प्रोजेक्ट है उसकी एक लोकल कॉपी अपने खुद के गिटहब अकाउंट में बना लेना, ताकि बार बार हमें उसके लिंक पे जाके उसे क्लोन बार बार ना करना पड़े। अब एक ये देखो यहाँ पे लिखा है दिस ब्रांच इज इवन विद निर्भय जैन मास्टर। अब निर्भय ने 2 ब्रांचेस बनाई थी, मास्टर एंड टेस्ट। तो इसका मतलब है कि अभी तक मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। जैसी एज इट इज वो ब्रांच थी मैंने एज इट इज उठाई और अपने पास इसे रख लिया। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब हम इसमें चेंजेस करने चालू करते हैं। चलो सबसे पहले तो सबने गिटहब डेस्कटॉप आई होप इंस्टॉल कर लिया हो। तो इसको कोड को डाउनलोड करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है या तो तुम जिप फाइल डाउनलोड कर लो या फिर गिटहब डेस्कटॉप से कर लो। आई प्रेफर गिटहब डेस्कटॉप से करो। यहाँ पे सबका खुल गया होगा, सीधा सीधा क्लोन पे दबा दो। ये उस प्रोजेक्ट को क्लोन कर रहा है। कंटिन्यू। जब ये क्लोन हो जाएगा तो सबसे ऊपर देखना, एक बार सबका क्लोन हो गया। एक बार क्लोन कर लो पहले सारे। निर्भय ने लिंक दिया, इसी को सब क्लोन कर लो फटाफट। लिंक चैट बॉक्स में डाला हुआ है। जब ये क्लोन हो जाएगा ना तो टॉप पे देखना एक फेच ओरिजिन का आ रहा होगा, यहाँ लिखा होगा नेवर फेच्ड। इसको क्लिक कर दो। ये बेसिकली उसके अपस्ट्रीम को फेच कर रहा है। तो अब आपका प्रोजेक्ट एकदम अपडेटेड है, जैसा कि निर्भय का प्रोजेक्ट था सेम एज इट इज आपके लोकल कंप्यूटर में आ गया है। तब उसको खोलते हैं। चलो बट ये प्रोजेक्ट आया कहाँ है ये देखना जरा। जो भी गिटहब डेस्कटॉप यूज कर रहा होगा, जो भी गिटहब डेस्कटॉप से क्लोन करेगा, गिटहब का अपना एक अपने आप डिफॉल्ट सा फोल्डर बनेगा। डॉक्यूमेंट्स में जाना है, गिटहब का फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे है वो फोल्डर डेमो। डॉक्यूमेंट्स में गिटहब अपने आप से एक फोल्डर बना देगा गिटहब नाम का, और ये डेमो यहाँ पे है तुम्हारा फोल्डर। तो इसको मैं फटाफट से एक बार ले आता हूँ अपने उसमें। ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, डेमो ऐड। तो अब अगर मैं टेक्स्ट फाइल खोलूँ तो देखो ABC123, ये मास्टर ब्रांच का सब कुछ ABC123 ABC123। और एक बार इसका मैं फटाफट से टर्मिनल खोल देता हूँ। इतना सबको समझ आया? फोक करना है सबको? जस्ट लिख दो चैट में फटाफट। कोई डाउट है तो पूछ लो, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो अभी। नहीं है? चलो फिर तो ये तो हो गया तुम्हारा फोक करना रेपो को। अब जो नेक्स्ट चीज आती है होती है पुल रिक्वेस्ट्स। पुल रिक्वेस्ट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स व्हिच यू विल एनकाउंटर ऑन गिटहब। पुल रिक्वेस्ट आए दिन चलती रहती है। पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? जैसे अभी तुमने फोक कर लिया रेपो को, अभी जो मैंने निर्भय की रेपो है उसको फोक कर लिया। अब मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। मान लो मैंने कुछ चेंजेस कर दिए और मुझे लग रहा है कि ये चेंजेस इसके प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाएंगे और मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। तो अब तो मान लो कि ये तुम्हारे अपने गिटहब पे दिख रहा है तुमको, ये जो भी निर्भय जैन की फाइल है ये तुम्हारे अपने गिटहब पे तुम्हें दिख रही है। अगर मैं इसमें पुश कर पाऊँ, मैं इसमें कुछ भी पुश कर सकता हूँ। ये मेरा लोकल डेस्कटॉप, ये मेरा लोकल अपने गिटहब पे है, इसमें मैं कुछ भी पुश कर सकता हूँ। कोई भी चेंजेस इसमें पुश हो जाएंगे। पर ये मेरी ब्रांच है, ये मेरी अपने खुद की गिटहब पे पुश होंगे, शिवांश द्विवेदी डेमो पे। पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? जो भी डेवलपर है जिसका भी हमने वो प्रोजेक्ट लिया है, हमको उसे बताना है ना कि हमने तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये चेंजेस किए हैं जिससे कि ये चीज और अच्छी बन सकती है। तो पुल रिक्वेस्ट क्या करती है? जब भी तुम्हारे कुछ भी चेंजेस हो जाएंगे तुम्हारे अपने टेक्स्ट, जो उस वाले प्रोजेक्ट में कोई भी तुमने चेंजेस करे,
तुमने उसको अपने लोकल पे पुश किया, तो उसके बाद यू ओपन अप पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट मींस कि तुम उस डेवलपर को एक रिक्वेस्ट डाल रहे हो कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये चेंजेस किए हैं और इसको तुम अपने प्रोजेक्ट के साथ मर्ज कर लो। तो दैट इज नोन एज अ पुल रिक्वेस्ट। करके देखते हैं एक बार कि होता क्या इसका मतलब। जैसे अभी ABC 1 2 3 था, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 5 6, इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, बस ये कर देते हैं, कमिट कर देते हैं इसको। अपने लोकल पे पुश कर रहा हूँ, जब ही सिखाया था, कुछ भी लिख कमिट हो गया और गेट पुश कर दिया मैंने इसको। ये हो गया गेट पुश। अब ये चीज यहाँ पे आ गई होगी, देखो कमिट। ये चीज मेरे पे आ रही है। अगर मैं सेम ये चीज पे निर्भय जैन डेमो पे जाऊं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई कमिट नहीं आ रहा जो मैंने किया। ये मेरे अपने लोकल पे चल रहा है, क्योंकि मैं अपने लोकल सिस्टम पे उसकी रिपोजिटरी के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। जो उसकी अपनी रियल रिपोजिटरी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे अंटिल आई ओपन अ पुल रिक्वेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने कमिट चालू कर दिया। अब मेरे को लगा कि अब ये प्रोजेक्ट ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है, अब मुझे से भेज देना चाहिए उस डेवलपर के पास। और देखो यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा होगा, दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड ऑफ निर्भय जैन 20 मास्टर। इसका मतलब है कि उस ब्रांच में जहां तक काम हुआ है आपने उससे एक स्टेप आगे लिया, एक कमिट आपने उसमें ज्यादा डाला है। ये आपको ये चीज बता रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबको पुल रिक्वेस्ट दिख रहा होगा, इस पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो। तो पुल रिक्वेस्ट ये देखो, ये कह रहा है कि जो मेरी अपनी लोकल गिटहब है उसके मास्टर ब्रांच से आई एम पुशिंग द चेंजेस टुवर्ड्स जो भी डेवलपर है उसकी मास्टर ब्रांच पे। यू कैन इवन चेक आउट दिस, यहाँ पे दोनों होंगे, मास्टर ब्रांच भी और टेस्ट ब्रांच भी। हम किसी भी ब्रांच पे किसी को भी पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मैंने चेंजेस किया मास्टर ब्रांच पे और मैं एनकाउंटर करना चाह रहा हूँ कि वो बंदा उसको अपने मास्टर ब्रांच पे ही वो इनकॉर्पोरेट कर ले। तो मैंने पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करा। यहाँ पे देखो तुम्हें चेंजेस दिख रहे होंगे, मैंने 4 5 6 ऐड करा। रेड डॉट, जहां भी रेड रेड दिखता है इसका मतलब है डिलीशन है, जहां भी ग्रीन है उसका मतलब एडिशन है। यहाँ पे देखो ये 2 डिलीट करे थे निर्भय ने और मैंने +4 5 6 ऐड कर दिया इसमें। यहाँ तक करा। अब यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दो, कोई भी मैसेज लिख दो, चेंजेस, कोई भी चेंजेस जो भी तुमने चेंजेस करे, जिससे कि डेवलपर को पता लगे कि ये पुल रिक्वेस्ट किस चीज की आ रही है। बेसिकली वो मैसेज फ्लैश होगा कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये चेंजेस करे हैं। जब ये चेंजेस हो गए, तुमने इतना कर दिया, अब चालू कर दो पुल रिक्वेस्ट। निर्भय एक बार इनको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दे, पुल रिक्वेस्ट आ गई होगी। अब ये इधर पुल रिक्वेस्ट का आ रहा है, मैं इस पे गया, यहाँ पे आ रहा है चेंजेस 15:35 सेकंड्स अगो बाय शिवांश द्विवेदी। यहाँ पे शिवांश के मेरे पास चेंजेस आ रहे हैं, उसने क्या चेंजेस करे हैं मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि उसने क्या कमेंट डाला है। फाइल्स कौन सी चेंज करी हैं, ये मेरे पास आ गया कि इसने ये फाइल्स चेंज करी हैं। अब इट्स माय चॉइस कि अगर मेरे को सही लगता है तो मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म मर्ज, मैंने मर्ज कर लिया। अब ये चेंज जो इसने मास्टर ब्रांच में करा था ये मेरे पास भी आ गया होगा। .txt 456 कंट्रीब्यूटर्स आ गया कि यहाँ पे दोनों ने इस रिपोजिटरी पे काम करा हुआ है। तो दीज आर नोन एज पुल रिक्वेस्ट, कि मैंने अपने कुछ लोकल पे काम किया और मैंने डेवलपर को एक रिक्वेस्ट भेज दी कि मैंने ये चेंजेस किए हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो इसे इनकॉर्पोरेट कर लो, नहीं लगे तो फिर क्लोज कर दो। अगर नहीं करता डेवलपर तो क्लोज कर देता पुल रिक्वेस्ट को बिना मर्ज करे। ऐसे होता है। एक बार कुछ एक और चेंज कर दे, एक और चेंज कर ले, कोई भी एक और वैसे कोई भी चेंज कर दे। एक बार मैं वो भी करना सिखा दूं, कुछ भी करते, कुछ भी लिखते। ठीक है, एक सेकंड ऐसा कर देते हैं।
हो गया। ठीक है, प्रेजेंटिंग एक बार बंद कर ले। हाँ हटा रहा हूँ। विजिबल स्क्रीन? हाँ विजिबल है। अब निर्भय ने मेरे बाद कुछ और चेंजेस करे इसमें, देखते क्या चेंजेस है। इसने अपडेट किया text.txt को कुछ, जैसे इसने xxx डाल दिया था यहाँ पे, ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। अब जब डेवलपर ही अपने कोड में कुछ चेंजेस करेगा तो क्या वो मेरे पास रिफ्लेक्ट बैक होंगे? क्योंकि मैंने फोक करी है वो रेपो, एक बार देख लेते हैं क्या वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये देखो यहाँ पे कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहे। फोक करने का मतलब होता है कि एट द पॉइंट यू हैव फोक्ड, उस पॉइंट पे जितना कुछ चेंज था या जितना कुछ था खाली वो ही तुम्हारे इसमें आ पाएगा अपने गिटहब पे। उसके बाद जो डेवलपर चेंजेस कर रहा है वो नहीं आता। उसके लिए क्या करते हैं, अब बार बार तो यार फोक नहीं करोगे, तुमने अब देखा तुमने डेवलपर ने फिर से कुछ करा है, तुमने फिर से फोक कर दिया, फिर से क्लोन करो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो इससे बेटर क्या करते हैं, अब हम फिर से पुल रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये पर रिवर्स पुल रिक्वेस्ट है, इसका मतलब है कि अब हम डेवलपर से नहीं ले रहे हैं, अब डेवलपर ने जो चेंजेस किया हमें वो भी अपने लोकल फाइल में जो हमने क्रिएट किया उसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो अब हम दोबारा चालू करते हैं पुल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ कंपेयर के लिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने कुछ कंपेयर ही नहीं करा, हमने जितना करा था वो भेज दिया। यहाँ पे लिखा है कि मास्टर ऑफ शिवांश द्विवेदी से हम कुछ भेज रहे हैं मास्टर ऑफ निर्भय जैन में, बट मैंने तो वो चेंजेस करे नहीं। हुआ क्या है, निर्भय ने कुछ चेंजेस करे और मुझे ये अपने में चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूंगा ट्राई स्विचिंग द बेस। अब ट्राई स्विचिंग द बेस से क्या हुआ, देखो मास्टर निर्भय जैन की रेपो से मास्टर ऑफ शिवांश द्विवेदी में अब चेंजेस आएंगे। और क्या चेंजेस आएंगे, इसने प्लस में क्या डाला है xxxx को, तो मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा। क्रिएट नहीं हुई, वो टाइटल डालना पड़ेगा कुछ। लिखते हैं टाइटल, लिखते हैं यहाँ पे कोई भी लिख दो और यहाँ से फिर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दो। अब ये पुल रिक्वेस्ट मेरे पास ही आई है, मैंने एक तरह से खुद को ही एक पुल रिक्वेस्ट डाली है जिसमें निर्भय के चेंजेस जो भी उसने करे वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो यहाँ से मैं मर्ज पे दबा दूंगा एंड कंफर्म मर्ज। अभी मर्ज हो गई। अब एक बार कोड में जाके देखते हैं कि क्या वो चेंजेस मेरे पे आ गए हैं। देखो ये देखो मेरे पास ये प्लस में xxxx आ गया, तो मेरे पास भी अपडेट हो गया ये। तो इसको कहते हैं हम रिवर्स पुल रिक्वेस्ट, एक तरह से जो लोकल डेवलपर्स की भाषा होती है भी पुल रिक्वेस्ट है, लेकिन ये हम अपने आप को ही डाल रहे हैं, खाली जो भी चेंजेस हुए डेवलपर ने उसको वापस से अपने पास लेने के लिए। तो पुल रिक्वेस्ट दोनों ही काम करते हैं, हम डेवलपर को भी भेज सकते हैं, डेवलपर से डाटा अपने पास भी ले सकते हैं। और अगर मुझे अपने कोड में चाहिए तो मैं यहाँ पे कर दूंगा गेट पुल। देखो यहाँ पे xxx भी कोड में आ गया मेरे, मैंने अपने लोकल फाइल में भी गिट पुल कर दिया। बार बार क्लोन नहीं करते। गिट पुल जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट करो ना, अगर तुम कंट्रीब्यूटर्स के साथ कर रहे हो फिर किसी के साथ भी तुम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है पुश करने से पहले कभी भी बिना पुल करे कोई भी चीज को पुश मत कर देना। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कंट्रीब्यूटर ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। यू वांट कीप अ ट्रैक एवरी टाइम कि तुम बार बार उसके गिटहब पे जाओ, देखो कि उसने ये चेंजेस करे हैं, तो अब मैं इस चेंजेस को पहले पुल करूं उसके बाद मैं पुश करूं। हमेशा जब भी कुछ काम करो ऑटोमेटिकली सबसे पहले पुल रिक्वेस्ट डालनी है, सारा पुल अपने पास ले लेना है, चाहे कुछ अपडेटेड ना हो, बट दिस इज अ वेरी हेल्दी स्टेप, बहुत फायदा होता है। और गिट पुल फिर अपने लोकल VS कोड के टर्मिनल में या फिर जो भी गिट के टर्मिनल में कर रहे हो वहां पे गिट पुल करो और सारे चेंजेस तुम्हारे पास जाते हैं वहां से। तो ध्यान रखना इसका। अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुमने पुल कर दिया लेकिन वहां पे किसी और ने भी पुल डाला हुआ है, तो एक तरह से मर्ज कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, कि तुमने कि जो भी तुम्हारा डेवलपर है उसकी रेपो में कोई और पहले से पुल रिक्वेस्ट डली पड़ी है, उसने वो मर्ज कर ली। अब तुम जो पुल रिक्वेस्ट डाल रहे होगे वो किसी पुराने वर्जन पे डाल रहे होगे, वो वर्जन तब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस पर तुमने पुल रिक्वेस्ट डाल दी लेकिन वो वर्जन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इवन इफ डेवलपर को लगता है कि ये चीज ज्यादा अच्छी है, ये फंक्शनलिटी ज्यादा अच्छी है, ही वांट बी एबल टू मर्ज, क्योंकि उसका वर्जन आगे चला गया, उसमें 2 पुल रिक्वेस्ट एडेड है, तुमने पुल किया नहीं, पहले पुल रिक्वेस्ट डाल दी, तो वो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स बना देती हैं। तो सबसे पहले पुल रिक्वेस्ट करके पुल करना डाटा अपने पास, उसके बाद अपने VS कोड में उसको पुल करना, फिर कोई भी चेंजेस करके उसे पुश करना।
तो बेसिक ये कमांड्स थी जो हमने यूज करी थी, installing it, creating a local repo, adding new files, staging changes, creating commits, new branches and all. तो ये बेसिकली ये स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करना होता है किसी को भी, और इतने में गिटहब की अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। बेसिकली गिटहब और भी ज़्यादा होता है, लेकिन फॉर सम स्टार्टर्स या फिर न्यूबीज के लिए इतना बहुत होता है जानने के लिए। मेन चीज़ इनमें पुल रिक्वेस्ट ही होती है। Change logs. When multiple people collaborate on a project, it's hard to keep track revisions, who change what, when, and whose files are stored. So GitHub takes care of this problem by keeping track of all the changes that have been pushed to the repo. तो इसको कहते हैं change logs. और basic git commands तुम्हारी जो भी यूज हुई है आज वो यही है, commit के लिए, status check करने के लिए, branching के लिए, branch बनाने के लिए, merging and all के लिए। तो ये सब चीजें ही है, बस इसी को वैसे पता है जब भी तुम किसी इंटर्नशिप में अप्लाई करोगे ना आगे, चाहे किसी की भी हो, वेब डेवलपमेंट की, अगर वो गिटहब पूछते हैं तो दे डेफिनेटली आस्क यू कमांड। तुम्हें CLI पे बहुत स्ट्रांग पकड़ होनी चाहिए, तुम्हें कमांड्स याद होनी चाहिए। वो सीधा कमांड ही पूछ लेते हैं कि इसके कमांड ही बताओ सीधा सीधा। अगर तुमने बोला कि तुम्हें गिटहब आता है तो तुम्हें कमांड बतानी जरूरी है। कोई और डाउट किसी को? So that's all. तुम पुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो मेरे अकाउंट पे। आई एक्सेप्ट, तुम्हें पता चलेगा कि पुल रिक्वेस्ट कैसे होती है और एक्सेप्ट कैसे होता है। मतलब मैं बोलूंगा कि सब जो निर्भय ने लिंक डाला है चैट में, सबसे पुल रिक्वेस्ट डालो और निर्भय मोस्टली सबकी एक्सेप्ट कर लेगा। और तुम इसे ब्रांचिंग भी कर सकते हो अपने नाम के साथ, और तुम्हें ये करना है कि टेक्स्ट वाले अपना नाम ऐड करना है विद ब्रांच everyone, and निर्भय, this will be your first pull request and निर्भय will accept or merge all the requests. And if anyone has any doubt, you can ask anything. मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैं एक रीडमी का भी बता देता हूँ तुम लोगों को। एक रीडमी क्या होती है, किसी भी प्रोजेक्ट, जैसे एक सेकंड शेयर करूँ स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल। मैं तुम्हें एक रीडमी दिखा देता हूँ। बहुत लोग रीडमी को इग्नोर कर देते हैं कि रीडमी होती क्या है। रीडमी एक ऐसी फाइल होती है जो कि तुम जब भी तुम कुछ बनाओ तो जनरेट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। रीडमी खाली यही रखती है, अगर मैंने इसको खोला तो तुम यही रखती है कि तुमने क्या बनाया हुआ इस रेपो में। जैसे गेमिंग फॉर्म्स की एक रेपो है मेरे पास अपने गिटहब पे, तो इसका रीडमी रखा हुआ है मैंने गेमिंग फॉर्म्स। रीडमी बेसिक सारा जस्ट दे देती है कि तुमने उसमें क्या करा है, कैसे करा है, क्यों करा है, इसको तुमने कहाँ डिप्लॉय करा है, किस किस प्रोसेस के थ्रू तुम गए हो, तुम सारा रीडमी में लिख सकते हो। जो बहुत अच्छे डेवलपर्स होते हैं ना, वो अपनी रीडमी बहुत स्ट्रांग बना के रखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। और रीडमी का एक और फायदा होता है, रीडमी से तुम अपना फ्रंट एंड गिटहब का बहुत अच्छा बना सकते हो। जैसे ये देखो, ये मैंने पूरा बनाया हुआ है, ये रीडमी है। तुम अपने नाम की रीडमी क्रिएट करोगे, उससे सब कुछ तुम इतना बढ़िया बना सकते हो अपना गिटहब कि देखने में इतना अच्छा लगता है, पूरा इतना बढ़िया। तो रीडमीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। रीडमी को बहुत ध्यान रखा करो, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओ उसके अच्छे से डिस्क्रिप्शन और अच्छे से रीडमी रखा करो। बाकी कोई डाउट है तो पूछो। तुम्हारे प्रोजेक्ट को रन करने की तो वो भी रीडमी में डालते हैं हमेशा। रीडमी देखती है, मतलब सामने वाले बंदे को एकदम पता चल जाना चाहिए कि तुमने प्रोजेक्ट में करा क्या है। उसको ये नहीं कि एक एक फाइल से गो थ्रू करना पड़ रहा है। तो रीडमी का मेन काम यही होता है। तुम अच्छी रिपोजिटरीज देखोगे ना जो अच्छे से मेंटेन होती है, उनकी रीडमी तुम देखना बहुत बहुत अच्छी होती है। तुम्हें सिर्फ रीडमी पढ़ के पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। आपकी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी गिटहब पे काम करना चालू कर दो यार, फर्स्ट ईयर में आ गए हो। अगर आगे कोई हैकाथॉन भी होती है आगे, तो उसके लिए हैकाथॉन के लिए तो मस्ट होता है गिटहब। उसके बिना तो लेते ही नहीं है, पार्टिसिपेशन ही नहीं लेते किसी का। और कंपनीज ना एक्सपेक्ट करती हैं कैंडिडेट से कि उसको गिट और गिटहब की नॉलेज तो बहुत अच्छे से होगी, अगर तुमने रिज्यूमे नहीं भी लिखा है तो भी। हर कंपनी में क्योंकि यूज होता है। हाँ, दैट्स ऑल। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी पूछ सकते हो डाउट है तो किसी को कोई।
बाकी प्रैक्टिस करते रहना गिटहब पे यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी नहीं तो 4-5 महीने बाद तो तुम्हें पता लग ही जाएगा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अभी तक कर रहे हैं, और थर्ड ईयर में आके हैं। जो भी VS बनाओ ना कोड गिटहब बता पे दो डाल दिया करो शोकेस करने के लिए हमेशा, ब्रो। छोटी VS छोटी कोड चीज भी। ब्रो VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है बस, मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूँ जो भी वेब डेवलपमेंट करता है वो VS कोड पे ही करे। अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट यहाँ करनी है तो VS कोड पे करे। मैंने निर्भय ने VS कोड ही यूज किया था इन सबको ओपन करने के लिए, क्योंकि VS कोड में इनबिल्ट टर्मिनल होता है बहुत अच्छा, और वो गिटहब से भी अच्छे से इंकॉर्पोरेट करता है। तो आई रिकमेंड VS कोड ही यूज करो, बाकी उसमें एक्सटेंशन भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी तुम्हें कुछ चाहिए तो एक अपने तुम दोनों वो भी शेयर कर दो गिटहब रिपोर्ट। ये मेरी गिटहब रेपो है, किसी को भी इसमें कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगे या फिर इसमें कोई पुलिंग या पुश करना है तो मोस्ट वेलकम है। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो यार। और ये पीपीटी की वो भी डाल दी मैंने लिंक, किसी को पीपीटी चाहिए हो तो, अगर रिसोर्सेज चाहिए हो तो स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप पे मांग लेना, मतलब गिटहब से रिलेटेड कुछ भी। कोई भी डाउट हो तुम स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप पे भी लिख सकते हो, विल रिप्लाई देयर। मुझे कहीं और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है यूट्यूब वगैरह? हाँ यूट्यूब वगैरह पे भी यार, हाँ यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, तुम गिटहब के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। बस सिंपली लिख देना गिटहब ट्यूटोरियल तो तुम्हें n नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आधे घंटे का होता है, तुम्हें काफी हद तक समझ आ जाएगा जो भी बेसिक्स होते हैं। ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। आप आगे हेड टेल वगैरह का सिस्टम भी होता है और डिफरेंट डिफरेंट कमिट्स के ऊपर भी तुम चेकआउट कर सकते हो, बट वो सब तुम्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम नॉर्मल पुश और पुल पे अभी ध्यान देना, पहले उसको ही ढंग से कर लेना। ओके ब्रो। गिटहब पे और भी सेशन है क्या? इफ नीडेड हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत अगर पड़ी। बच्चे होंगे इंटरेस्टेड तो एक बार और पूरा रिवीजन करा देंगे। हाँ एक बार ही और रख लेंगे, अब तो तुम्हें जल्दी जल्दी भी समझ आ जाएगा। मेजर तो तुमने सब कर ही लिया है। यार गिटहब पे थ्योरी पढ़ पढ़ के कोई फायदा नहीं है, मीन हैंड्स ऑन ही है, जब तक उसे प्रैक्टिस ना करोगे अपने आप कुछ समझ नहीं आता। ओके मैं डाल दूंगा पीपीटी का लिंक ग्रुप पे। Can you give all your contact details? Sure. ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और ये आईडी है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं आई गेस? तो किसी की bind रिक्वेस्ट आई भी नहीं मेरे पास। फुल रिक्वेस्ट कर लेना, आई एक्सेप्ट डेमो वाली रेपोजिटरी पर ही।
श्योर ब्रो। ओके ओके चलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग यार। ओके थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कोई भी डाउट हो तो ग्रुप पे ही पूछ लेना, पूछना हो तो। ग्रुप पे पूछ लेना या पर्सनल डीएम करना है, जैसे भी ठीक लगे, जैसे भी ठीक लगे। Sure.